بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچے گرانا۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہے ہوں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے یا جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویہ جلدی ہی یہ احساس دلا دیتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، لیکن اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی کوئی تانا نہیں ملتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ اگر مجھے میرے عمل کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت ماننا، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، کیونکہ زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر پھر بھی کیا کیا دکھا دیتا ہے۔ لوگ چاہیں تم سے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ انسان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعاؤں کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگتا ہو تو ہنس کے دے دیا کرو، اور شکر ادا کیا کرو کہ تمہارے اللہ نے تمہیں اتنا دیا کہ تم دینے والے بنے، مانگنے والے نہیں۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں مل کر ہی رہے گا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو
क्योंकि याद रखो, हमेशा मीठा फल चाकू की नोक पर होता है। अकेले रहने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हो या आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। हजरत अली से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है, तो हजरत अली ने फरमाया कि जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास हो वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, फिर देखना तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है उसका हमें इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, मगर अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो चुकी है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकिए। पहला वालिदैन, दूसरा बच्चे, और तीसरा गमज़दा इंसान। अपने दिल में इतनी नफ़रतें मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफ़रतें होती हैं उस दिल में अल्लाह कभी नहीं बसता। नमाज मट्टी के इंसान को सोने का बना देती है। इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, बल्कि नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। एहसान करना और दरगुजर करना। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली ने फरमाया, हमेशा इखलाक से बात किया करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़बान की वजह से आती हैं। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। बड़ा काम वही शख्स कर सकता है जो खुद को छोटा करने पर राजी कर ले। सलाह के वक्त पुरानी बातें ना दोहराओ, क्योंकि आपका ऐसे करने से जंग हो जाएगी। मुंह पर तारीफ करने के बजाय बेहतर यह है कि पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दिया जाए। इस दुनिया में झूठ को सबसे ज्यादा खतरा सवाल से होता है, और वहीं सच को हमेशा सवालों से दिलचस्पी होती है। कभी कभी इंसान को उस मकाम तक ना लेकर आए कि वो इंसान आपको बद्दुआ देना शुरू कर दे। हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क को कम कर सकता है। जिस बात का तुम्हें पूरा इल्म ना हो, अपनी जबान से मत निकालो। इस दुनिया में शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गीदड़ उसके लिए क्या सोचता है। आजादी का दर्द गुलामी के सुकून से बेहतर है। बावकार कौम की तरह जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी रवायतों को ना भूलो। जिंदगी जरूरत के मुताबिक गुजारो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। हैरत है कि इंसान हाथ तो दुनिया के आगे फैलाता है और गिला खुदा से करता है। जो काम इखलाक की नियत से ना किया जाए उसका अंजाम बुरा होता है। इंसान को जिंदगी ऐसी गुजारना चाहिए कि कहानी लिखनी पड़ जाए तो कुछ छिपाना ना पड़े। अपने मुर्शद से तलब करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। ऐसे दिखो जैसे तुम हो, या ऐसे रहो जैसे तुम दिखना चाहते हो। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो।
सच बोलने का शौक है तो अपने बारे में बोलो, लोगों की जिंदगी अजाब मत बना। हजरत अली ने फरमाया, अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ, क्योंकि तुम्हारी ऐसी खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। वो लोग जो इंसान को छोड़कर या इंसान से मुंह मोड़कर खुदा की तलाश करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे सवालात से निकलकर जब इंसान एक सवाल में दाखिल हो जाता है, तब उसका सफर वाज़े हो जाता है। किसी आलिम दीन को बादशाहों की महफिल में आते जाते देखो तो तब ऐसे आलिम से दीन मत लो। जब जमाना अमन का हो और हालात जंग जैसे हों, तो समझ लो कि अजाब का वक्त है। ऐसे लोगों की जरूर मदद करो जिनके चेहरों पर सवाल होता है और जबान बेसवाल होती है। खाक हो जाए वो मर्तबा जो दूसरों के लिए मुफीद ना हो, और लानत हो उस ताकत पर जो कमजोरों की हिफाजत नहीं करती बल्कि उसे डराती है। आसान जिंदगी ये है कि आप किसी का गिला ना करें, बल्कि जैसी जिंदगी है उसे वैसे ही कबूल कर लें। गुस्से की मौजूदगी में किसी को माफ कर देना अल्लाह की राह में सबसे बड़ा सदका है। अगर आपकी नेकी करने के बाद भी आपको तकलीफें आ रही हैं, तो समझ लेना ये आपकी अल्लाह की बारगाह में बुलंदी की निशानी है। दूसरों से नफरत करने वाले दिल में कभी अल्लाह नहीं आ सकता। इस दुनिया में असल आंख वाला वो है जो अपने आप को देख सके। वो बुलंदी किसी काम की नहीं जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। इसलिए या तो अपने आप को मजबूत कर लो या अपने आप को मसरूफ कर लो। उस अल्लाह का मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, बस फिर वो हो जाती है। हजरत अली ने फरमाया कि किसी के घर जाओ तो अंधे बन के जाओ, और जब बाहर निकलो तो गूंगे बनकर। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है, वो इंसान प्यार भी उतना ही ज्यादा करता है और उसका दिल भी उतना ही साफ होता है। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि इन्हीं के पीछे मकबूलियत छिपी होती है। नफरत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारा उससे मोहब्बत करना उसको उस गुनाह करने से छुड़ा दे। हजरत अली ने फरमाया, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसका कत्ल कर देने के जैसा है। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए फिक्र, मोहब्बत, इज्जत और चाहत हो। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, और बदकिस्मत है वो शख्स जिसकी वजह से कोई रोए। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, क्योंकि उसे मिट्टी में मिल जाना है। अगर संवारना ही है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे अपने रब के पास जाना है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकला हो। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवारों में से कील निकालने पर भी सुराख बाकी रहता है।
اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، کیونکہ ناکاموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور میدان میں کھیل رہے کھلاڑی نہیں بلکہ وہاں آئے تماشین کیا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے۔ وقت نے گرایا ہے تو وقت ہی اٹھائے گا، کیونکہ آج اگر زوال ہے تو کل عروج بھی آئے گا۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا نہ دعا لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنے سچا ہونے کی دنیا کو دلیل مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے اور اس لیے تمہیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جب کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتا ہوا دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں پچھتاوا بھی ظرف والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، کیونکہ بے ضمیر اور بے اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کرو، پھر دیکھنا ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ گھر کے اندر
जी भर कर रो लेना, लेकिन दरवाज़ा हमेशा हंस कर ही खोलना, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि आप टूट चुके हैं तो वही लोग आपको लूट लेंगे। सारी उम्र किसी के साथ कितना ही अच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन मजबूरी में किसी एक बात पर साथ ना दे तो सारी उम्र की अच्छाइयाँ कोने में डाल दी जाती हैं। इंसानी समझ का मेयार बस इतना सा है कि अगर जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है, हालांकि शेर भी जानवर ही है। कुरान दिल और दिमाग को खोल देता है, लेकिन उससे पहले कुरान को खोलना जरूरी है। जिंदगी का सफर तो बस इतना सा ही है कि आते हैं अजान पर और चले जाते हैं नमाज पर। बगैर लिबास आए थे इस जहां में, बस एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। बिस्तर उठाकर मस्जिद जा न सके, लेकिन ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। ये मस्जिदें भी जबरदस्त इंसाफ की जगह हैं, जहां अमीर और गरीब दोनों साथ मिलकर अपने अल्लाह से भीख मांगते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपका वक्त, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत और आपकी फिक्र। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। दुनिया में झूठे लोगों को ही बड़े हुनर आते हैं, क्योंकि सच्चे लोग तो इल्जामों से ही मर जाते हैं। इस दुनिया में जहां इंसान जाता है वहां उसका रिस्क पहले ही पहुंच जाता है। जब तक तुम अपनी कदर खुद नहीं जानोगे तब तक कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। अगर इस दुनिया में आप अच्छे हैं तो आप लोगों को नहीं बल्कि लोग आपको खोते हैं। इस दुनिया में आपका किरदार ही एक ऐसी किताब है जिसे अंधा और जाहिल भी पढ़ सकता है। इंसान को किसी की नीयत जानने का नहीं बल्कि अपनी नीयत साफ रखने का आखिरत में अजर मिलेगा। हर शख्स के मियार पे पूरा उतरना नामुमकिन है, इसलिए हमेशा वही जाहिर करिए जो आप हैं। जब आपको महसूस हो कि आपका वजूद, आपके अल्फाज, आपकी जात किसी के लिए बोझ है, तो सब मामलात को और लोगों को वक्त और हालात पर छोड़ दें। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, तो वो इंसान अपने दिल में कमाल का ईमान रखता है। सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन ना करिए, क्योंकि झूठ हमेशा सच से ज्यादा जल्दी फैलता है। माजी में किए गए गुनाहों को याद करिए और खामोशी के साथ उनकी माफी मांगते रहिए। इस दुनिया में 4 गलतियों से हमेशा बचो। पहला, शरीफ को बेवकूफ मत समझो। दूसरा, मक्कारों को अक्लमंद मत समझो। तीसरा, कातिल को बहादुर मत समझो। और चौथा, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। इस दुनिया में अपनी उस खामी को ढूंढो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। खुद का दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दो, क्योंकि सूरज हो या चांद हो, ये दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज्यादा आप पर किया हो। हजरत अली ने फरमाया कि इस दुनिया में जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ उठा लो। अल्फाज वो फूल हैं
जो कभी मुरझाते नहीं हैं और आने वाली नस्लों को ताजगी से भर देते हैं। नमाज में दुआ और मोहब्बत में वफा बहुत ज़रूरी है। या अल्लाह, मुझे आज़ाद कर मेरे नफ्स की बंदिश से। दुआ अल्फाज का नहीं बल्कि आपकी कैफियत का नाम है। इस दुनिया में किसी की किसी से मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, बस तवक्को ख़त्म हो जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में वो एक शख्स ढूंढना जिससे बात करते हुए आपको अल्फाज का चुनाव करना पड़े। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, बल्कि ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाते हैं। इस दुनिया में हम किसी को जबरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि ये दुनिया वाले ही उसकी नरमी छीन लेते हैं। इस दुनिया में सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। लोग हमारी जिंदगी का एक सफ़ा पढ़कर पूरी किताब खुद लिख देते हैं। इस दुनिया में हमें हमारा बुरा वक्त बताता है कि हमें अपना अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। इस दुनिया में सब रिश्ते वक्त के साथ रंग बदल लेते हैं, सिवाय माँ के। खामोशियां ही बेहतर हैं, क्योंकि लफ्जों से अक्सर लोग रूठ जाते हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ता है, और जिसे तुम नामुमकिन समझकर अपनी दुआओं से निकाल देते हो, तुम्हारा रब उसे एक पल में मुमकिन करने पर कुदरत रखता है। इसलिए उसके कुन पर कभी शक मत करना। दुख की बात तो यह है कि हम अपने गमों पर रोते हैं, अपने गुनाहों पर नहीं। हमारा अल्लाह से रिश्ता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने गम, दुख, दर्द, हाजात और शिकायत पे रोते हैं। हमारे अपने गुनाहों पे रोना हमारे गमों का इलाज बन जाए। वो जो ऐब देखकर भी नफरत नहीं करता, वो जो खता पर भी पकड़ नहीं करता, वो जो नाफरमानियों पर भी दुआएं रद्द नहीं करता, वो जिसका होना तन्हाई में भी काफ़ी है, वो जिसकी मोहब्बत हर चीज़ पर नाकिस है, वो जिसे मनाने के लिए एक नदामत का आंसू काफ़ी है, और वो जो हमेशा से बाकी है, और वो ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का होता है, जहाँ ना माजी के ताने मिलते हैं और ना ही मुस्तकबिल का खौफ। सिर्फ कर्म की चादर से ढाँप दिया जाता है। बस एक सजदे और नर्म आंखों से दिल को सुकून आ जाता है। उस दिन सब मोहब्बतें झूठी नजर आएंगी जब सुनाई देगा या रब्बी उम्मती उम्मती।